الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. تمام قسم کی تعریف، ہر قسم کی عبادات اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اور بے حساب لا تعداد درود و سلام ہو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیا. علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم. محترم و معزز حاضرین مجلس، سامعین کرام، آج کے اس درس کے اندر جو میرا ارادہ تھا وہ تھا فکر آخرت. اس موضوع پر کچھ بولنے کا میرا ارادہ تھا، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے مجھے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے بتایا گیا کہ یہاں پر آ کر مجھے درس دینا ہے. تو اس وقت کی قلت کی وجہ سے میں مکمل طور سے تیاری نہیں کر سکا. پھر میرے ذہن میں آیا کہ کیونکہ آج ہمارے علاقے کے اندر اور تقریباً کہ ہندوستان کے اندر یہ جو موسم چل رہا ہے، شادیوں کا موسم جسے کہا جاتا ہے، اس سلسلے پر معاشرے کی کچھ اصلاح ہو جائے تو وہ بھی وقت کی ضرورت ہے. کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس کے اندر بہت ساری برائیاں ہیں، اور انہی برائیوں میں سے جو نکاح اور شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، یہ بھی ہمارے اسلامی سماج کے اندر بہت گمبھیر ہوتا چلا جا رہا ہے، بڑا خوفناک ہوتا چلا جا رہا ہے. سب سے پہلے آپ یہ جانیے شادی کی اہمیت کیا ہے، نکاح کی اہمیت کیا ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی سورہ نور کے اندر فرماتے ہیں وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ کہ تم لوگ نکاح کرا دو ان لوگوں کا جو لوگ غیر شادی شدہ ہوں، والصالحین من عبادکم و امائکم، اور ان نیک لوگوں کا جو تمہارے غلام بھی ہیں، تمہاری لونڈی بھی ہیں. اب گرچہ اس غلام اور لونڈی وغیرہ کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اب اس سے استدلال یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ ہمارے آس پڑوس کے لوگ ہیں، غریب ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، یا ہمارے خود کے بچے ہیں، شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، ابھی ان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ معاش نہیں ہے کہ وہ اپنی شادی کر سکیں، تو والدین کے اوپر بھی یہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کا نکاح کرا دیں. یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگرچہ وہ غریب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، شادی کی برکت سے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ بہت وسیع ہے. اسی طریقے سے سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیموں کے ساتھ عدل و انصاف نہیں کر سکو گے، فَانكِحُوا تو تم نکاح کر لو، مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ جو عورتیں تمہیں پسند ہو، مثنى وثلاث ورباع وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. اب تم فرمایا کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ جو عورتیں تمہیں پسند ہو ان سے نکاح کرو، 2 کرنا چاہو، 3 کرنا چاہو، 4 کرنا چاہو کر سکتے ہو. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہیں اس چیز کا ڈر بھی ہو کہ تم اگر 2 شادی کر رہے ہو، دونوں بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکو گے، 3 نکاح کر رہے ہو تو تینوں بیویوں کے
बराबर हुकूक नहीं दे सकोगे, फवाहिदतन, तब तुम्हारे लिए एक ही काफी है। तो इन दोनों आयात में ये बात पता चला कि अल्लाह ताला ने खुद निकाह करने का हुक्म दिया है, निकाह खुद भी करने का हुक्म दिया, निकाह करवाने का भी हुक्म दिया। इसी तरीके से हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या माशर शबाब, नौजवानों को मुखातब करके फरमाया, या माशर शबाब, ए नौजवानों की जमात, मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फलयतज़व्वज, कि तुम में से जो नौजवान शख्स हैं, गैर शादीशुदा हैं, जो लोग भी शादी का खर्च उठा सकते हैं, महर दे सकते हैं, फलयतज़व्वज, उन्हें चाहिए कि वो निकाह कर ले। अब यहां पर एक चीज रुक कर मैं वाज़ेह करना चाहूंगा कि बाअ से मुराद क्या है, यहां पर कौन सा खर्च मुराद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा खर्च मुराद लिए। तो मुफस्सिरीन और सलफ़ सालिहीन से हमें पता चलता है कि शादी में सिर्फ दो ही अखराजात हैं शादी करने में। एक खर्च महर का, जो औरत का हक है, महर देने का खर्च। दूसरा खर्च वलीमे का खर्च, और वलीमा कितना, जितनी आपकी इस्तिताअत हो। मिसाल के तौर पर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, उस 1 लाख रुपए से आपका साल भर खर्च चलेगा। अब आप सोचें, मेरी शादी है, मेरे अरमान है, मेरी ख्वाहिशात है कुछ, आप 1 लाख की जगह 2 लाख का खर्च कर दें उसमें, अब आप मकरूज भी हो गए, आपके पास खर्च करने के पैसे भी नहीं बचे, अब आपने अपने ऊपर परेशानी डाल ली। तो ये लाजमी नहीं है कि आप उस वलीमे के अंदर बेदरिया धड़ल्ले से खर्च करें, बल्कि अगर आपके पास 1 लाख है, बहुत से बहुत 20-25 हजार खर्च करके निकाह कर दीजिए, वलीमा कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि आप पूरे खानदान को पूछें और हर जगह घर घर जाकर दावतें बांटे, ये जरूरी नहीं है आप पर। और बाज़ सलफ़े सालिहीन यहां तक कहते हैं कि निकाह करना वाजिब नहीं है, वो सुन्नत है, क्योंकि कुछ हद तक उनकी बात सही भी है। बहरहाल ये इख्तलाफी मसला है, मैं इस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन वजह क्या है वाजिब ना करने की? वजह यह है कि अगर आप निकाह कर लेते हैं, आपने महर अदा कर दिया, आपने लड़की के वली की इजाजत के साथ दो शवाहिद के साथ, यानी जो 2 शवाहिद होते हैं उनके साथ, एक वली है, ये 3 लोग हैं, वली की इजाजत, 2 शवाहिद, दुल्हा, काजी साहब ने निकाह पढ़ाया, निकाह हो गया, आपने महर अदा कर दिया, आपका निकाह हो गया। अब आप अगर वलीमा नहीं करते हैं तो आपके निकाह में कोई बातिल पर नहीं आएगा, आपका निकाह फासिद नहीं होगा, आपका निकाह हो जाएगा। तो इस वजह से बाज अहले इल्म यहां तक भी कहते हैं कि वलीमा करना वाजिब नहीं है। तो ये दूसरा मसला है। मुराद यही है कि शादी में जिस तरीके से हमने बना लिया है, इतनी मुश्किल शादी नहीं है। क्यों? वजह यह है कि शादी हमारी फितरी जरूरत है। जिस तरीके से हवा पानी हमारी फितरी जरूरत है, इस्लाम ने, अल्लाह ताला ने हमारे लिए इतनी आसानी करी है, और अल्लाह ताला चाहता है कि जो इंसान की फितरी जरूरतें हैं वो आसान रहे। पानी है, फितरी जरूरत है, आपको हर जगह मैसर मिल जाएगा, अक्सरियत बगैर कीमत के मिल जाएगा। हवा है, हवा आपकी फितरी जरूरत है, आपको हर जगह फ्री में मिल जाएगी। अभी अल्लाह ताला ने हमें दिखा भी दिया, कोरोना का जो दौर था, हमने अपने ऊपर परेशानियां डाल ली, हमने इतना पोल्यूशन कर लिया, हवा खराब हो गई। अब जब हमें ऑक्सीजन खरीदना पड़ रहा था, कितनी मशक्कतें आ रही थी। अल्लाह ताला ने दिखा भी दिया कि तुमने जो चीजें मुश्किल करी हैं, इसकी वजह से तुम्हारे ही ऊपर परेशानी आएंगी। इसी तरीके से अभी अल्लाह ताला ने आपको पैसे दिया है, आपने अपने अरमान निकालने के लिए बेदरेग खर्च किया, धड़ल्ले से खर्च किया। अब आगे चलकर आपके पास पैसे नहीं है, आप अपने बेटे की, अपने भाई की, अपनी बेटी की, अपने बहन की, अपने रिश्तेदारों में से किसी की शादी करवाना चाहेंगे, अब शादी नहीं कर पाएंगे। क्यों? परेशानी तो आप ही ने मोल ली है। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, कि तुम्हारे ऊपर जो भी परेशानियां आती हैं, ये तुम्हारी ही करतूतों का नतीजा है, तुम्हारे ही हाथों ने कमाया है। अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती नहीं डाल दिया है, तुम्हारी करतूतों की वजह से तुम्हारे ऊपर परेशानी आती है, मुसीबतें आती हैं। तो कहने का मकसद यह है कि शादी एक फितरी जरूरत है, और शादी यहां तक कि कहा जाता है कि एक इबादत है।
क्यों इबादत है? हदीस के अल्फाज हैं, इदा तज़व्वज अल-अब्दु फ़क़द इस्तकमल निस्फ़ अद-दीन फ़लियत्तक़िल्लाह फ़ी निस्फ़िल बाक़ी। एक रिवायत के अंदर यह है कि जिस शख्स ने शादी कर ली उसने गोया कि आधा दीन मुकम्मल कर लिया, अब उसे चाहिए कि वो आधे में अल्लाह ताला से तक़वा इख्तियार करे, अल्लाह ताला से डरे, अल्लाह ताला की इताअत करे। एक रिवायत में यह है। दूसरी रिवायत के अल्फाज में मफ़हूम बता रहा हूं कि रिवायत के अल्फाज ये हैं कि जिस शख्स के अल्लाह ताला ने मदद कर दी नेक बीवी पाने में, यानी जिस शख्स को नेक बीवी मिल गई, अल्लाह ताला ने मदद कर दी उसकी कि उसकी शादी नेक बीवी से हो गई, गोया कि उसने आधा दीन मुकम्मल कर लिया, अब उसे चाहिए कि वो अल्लाह ताला से आधे दीन में डरे। यानी मुराद यही है कि अल्लाह ताला ने तशबीह दी है निकाह को आधे दीन से। तो निकाह एक इबादत भी है। इबादत किस तरीके से है? कुछ बच्चे बैठे हैं इसीलिए मैं तफसील में नहीं जाऊंगा कि जब आदमी अपनी ख्वाहिशात अपनी बीवी से पूरी करता है तो रिवायात में पता चलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि उसे सवाब मिलता है अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरी करने से। अब सहाबा कराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल, हम अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हैं और हमें इस पर भी सवाब मिलता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर यही शख्स अपनी ख्वाहिशात गलत जगह से पूरी करे, जिना वगैरह के तरीके से पूरा करे, तो क्या उसे गुनाह नहीं मिलेगा? सहाबा कराम ने कहा, हाँ अल्लाह के रसूल, उसे गुनाह मिलेगा। तो अगर वही हलाल तरीके से कर रहा है तो उसे सवाब भी मिलेगा। यही जो उसूल है तिजारत पर भी लगता है कि अगर आप हलाल तरीके से अपनी रोजी कमाएंगे तो आपको सवाब मिलेगा, अगर आप हराम तरीके से अपनी रोजी कमाएंगे तो इस पर गुनाह मिलेगा। तो ये उसूल तिजारत पर भी है। बहरहाल, अब जो हमारा मुआशरा है इसने अपने ऊपर कितनी परेशानियां कर ली है। आप जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि रिश्ता देने से लेकर के शादी हो जाने के बाद तक जितनी रस्मों रिवाज हैं, कितनी रस्मों का ताल्लुक इस्लाम से है, कोई मुझे बता दे। आप में से कई लोग उम्र दराज हैं, आप बताएं हमें एक रस्म बता दीजिए जिसका ताल्लुक इस्लाम से है। और तो और हंसने की बात यहां तक है और अफसोस साथ साथ कि हर निकाह के खुतबे में काजी साहब, खतीब साहब क्या कहते हैं? अन निकाह मिन सुन्नती। सुनते हैं हम लोग कि निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में से है। अब आप मुझे बताइए, उस नबी की सुन्नत में से हमने अपनी शादी में क्या किया? यहां तक कि जो निकाह कर रहे हैं, जो निकाह का खुतबा दे रहे हैं, उसमें भी बहुत सारी जगहों पर बिदअत और खुराफात आ चुकी है। जबकि निकाह इतना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि हमारी फितरी जरूरत है। निकाह अल्लाह ताला ने बहुत आसान कर दिया। अल्लाह के रसूल ने अपनी तालीमात से बता दिया कि इन्ना अअज़मन निकाही अयसरुहु मऊना, कि सबसे आज़म निकाह, सबसे बेहतरीन निकाह, सबसे बड़ा निकाह वो है अयसरुहु मऊना, कि जिसमें खर्च कम हो। अब इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं खर्च में। पहली चीज, औरत का निकाह, औरत का महर जो है, महर जो तलब करती है औरत, वो आसान रखे, कम मांगे महर। बहरहाल अगर वो ज्यादा भी मांगती है वो उसका हक है, वो देना वाजिब है और आपको खुशी खुशी देना पड़ेगा। दूसरी चीज ये आ सकती है कि जो खर्च हम लोग फजूल खर्ची करते हैं कपड़े में और दीगर चीजों में, इसे कम खर्च किया जाए तो बेहतरीन हो सकता है। तीसरी चीज ये हो सकती है कि जो हम बहुत फजूल खर्ची में, मतलब सजाने सवारने में, ये सब अपना खर्च लगा देते हैं, इसे कम कर लें। तो अगर आप ये तीनों चीजें करते हैं, तीनों चीजें कर लें, और अगर एक चीज हटा भी दें, क्या चीज हटा दें? महर का मसला हटा भी दें और बाकी चीजों में आप अपना पैसा बचा ले, तो आपका निकाह सबसे बेहतरीन है। आज आप देखते हैं शादियों में 50 लाख, 20 लाख, 25 लाख, कहीं कहीं करोड़ तक भी खर्च आ जाता है। और हाल यह है कि 6 महीने बाद, साल भर, 2 साल के बाद निकाह टूट गया। क्यों? बरकत ही नहीं हुई इसमें। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, अगर तुम्हें निकाह में बरकत चाहिए, तुम्हें आलो औलाद अच्छे चाहिए, तुम मेरी तालीमात पर अमल करो, तुम्हारे आलो औलाद तुम्हारी आंखों की ठंडक भी बनेंगी,
तुम्हारे खिदमत गुजार बनेंगे, तुम्हारे निकाह में बरकत भी होगा। और अगर तुम अपने लिए शौहर ढूंढोगी, लड़की अगर अपने लिए शौहर ढूंढे और अल्लाह के रसूल की तालीमात पर अमल कर कर ऐसे शौहर ढूंढे तो उनकी जिंदगी खुशहाल गुजरेगी। और यही बरअक्स अगर आदमी अपने लिए लड़की ढूंढे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर लड़की ढूंढे तो उसकी जिंदगी आगे के लिए आसान हो जाएगी। खैर मताए दुनिया अलमरअतु सालिहा, कहा जाता है, हदीस के अल्फाज हैं, खैर मताए दुनिया, इस दुनिया का सबसे बेहतरीन साजो सामान। दुनिया में कई सामान है, हर चीज है, और आज टेक्नोलॉजी के दौर में क्या क्या चीजें मिल जाती है आराम के लिए, बहुत बेहतरीन चीजें मिल जाती हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैर मताए दुनिया अलमरअतु सालिहा, कि इस दुनिया का सबसे बेहतरीन सामान क्या है? नेक सालेह औरत। आज हम क्या देखते हैं लड़की के अंदर, जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जब औरत से शादी करी जाती है, किसी औरत को रिश्ता दिया जाता है तो उसमें 4 चीजें देखी जाती हैं। क्या क्या? माल, हसब व नसब, जमाल और फिर दीन। फज़फर बिज़ाति दीन तरिबत यदाक। ये 4 चीजें देखी तो जाती हैं, लेकिन तुम क्या चीज तरजीह देना? दीन को तरजीह देना। तुम्हारे दोनों हाथों में कामयाबी आ जाएगी, तुम बहुत खुशहाल जिंदगी जियोगे। लेकिन आज हम सिर्फ दीन नहीं देखते हैं, बाकी सब देखते हैं। और यहां तक के हाल यह है कि देखने में, बहरहाल वो आगे तफसीर मैं करूंगा, देखने में कि लड़के को दिखाया नहीं जाता है, पूरे खानदान वाले देखाते हैं, लड़का नहीं देखता है। और कहीं कहीं बेहयाई की हद तो यहां तक पार हो जाती है कि लड़के के दोस्त तक दिखाते हैं, लड़के को नहीं दिखाया जाता, या कहीं कहीं लड़के को दिखा भी दिया जाता है तो उसके दोस्त उसके साथ जाते हैं। ये बेहयाई की हद हो गई है। सामाईन कराम, जो हम सुन रहे हैं अन निकाह मिन सुन्नती, हर निकाह के खुतबे में, तो क्या हमारे ऊपर ये वाजिब नहीं कि हम अपने निकाह को सुन्नत के तरीके पर करें? क्या हमारे पास ये ताकत है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के लिए, अपने जज्बातों के लिए, हमारे इकलौते लड़के की शादी है, हमारे पहले लड़के की शादी है, हमारी इकलौती लड़की है, हमारे पास लड़कियां हैं, सबकी शादी करनी है, इसके नतीजे में हम अल्लाह के रसूल की सुन्नत को पैरों तले रौंद दें? क्या हमारे पास ये ताकत है? क्या हमारी ये हैसियत है कि हम अपने अरमानों के नतीजे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को पैरों तले रौंद दें? जिसके नतीजे में क्या हो रहा है, हमारे मुआशरे के अंदर मुस्लिम लड़कियां इर्तिदाद के शिकार हो रही हैं, मुर्तद हो रही हैं, कुफ्फार के साथ भागकर चली जा रही हैं, काफिर हुई जा रही हैं, जिना की तरफ भागती चली जा रही है। मैं आपको बताऊं, मेरे एक उस्ताद हैं और उनका एक साथी होटल चलाता है। वो कहता है उनसे कि क्या आपके यहां बेटियों की भरमार है क्या? आपकी बेटियां बहुत हैं क्या? अब वो ताज्जुब में कहने लगे, मेरे उस्ताद कहने लगे, क्यों ऐसा सवाल कर रहे हो? कहने लगा कि मेरे इस होटल के अंदर 90% लड़कियां मुस्लिम आती हैं, 90%। उन्होंने कहा अरे हो सकता है कोई ऐसे मुंह छुपाकर नकाब ओढ़कर चली आती हो, मुंह छुपाने के लिए। उसने कहा कि हम आधार कार्ड लेते हैं, आधार कार्ड से एंट्री करते हैं। चलिए अगर मान लीजिए आधार कार्ड भी झूठा है, अगर 50% भी लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां जिना की तरफ जा रही हैं, तो ये कमी कोताही किसकी है? हो सकता है हमारी घर की बहन बेटियां हो सकता है हमारे रिश्तेदारों की बहन बेटियां हो सकता है हमारी पड़ोस की बहन बेटियां हो, जिना की तरफ जा रही हैं। इसका थोड़ा बहुत जिम्मा हमारे ऊपर भी तो आता है। क्यों आता है? क्योंकि हमने जो निकाह है उसको इतना मुश्किल कर दिया, जिना को आसान कर दिया है। जबकि निकाह इतना आसान होता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में रहते थे। मदीना की बस्ती बहुत बड़ी नहीं थी। आप में से जो लोग भी मदीना गए हो 1-2 साल के अंदर, जितनी बड़ी मस्जिद नबवी है इस वक्त, सलफ़े सालेहीन कहते हैं इससे छोटे में पूरी बस्ती बसी हुई थी मदीना की। तो उतनी छोटी सी बस्ती के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के शख्स और इस्लाम की सीरत के अंदर सबसे अमीर आदमी अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाहु अन्हु, उन्होंने शादी करी
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर नहीं। वो आते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने और देखते हैं कि उनके कपड़े पर जाफरानी रंग लगा हुआ है, जर्द रंग लगा हुआ है, जाफरानी रंग जो आ जाता है मर्दों के लिए वो लगाना दुरुस्त नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जाफरानी रंग कैसा है, क्या माजरा है कि तुम्हारे कपड़े पर जाफरानी रंग लगा हुआ है और उसके जरिए से खुशबू भी आती है। तो उस वक्त की जो औरतें थी जाफरानी रंग के जरिए से खुशबू लगाना उनका मकसद होता था। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल मेरी शादी हो गई है जिसकी वजह से ये मेरे कपड़े पर लग गया है। बहरहाल उन्होंने लगाया नहीं था, हो सकता है कि उनके जो दुल्हन के कपड़े थे या दुल्हन ने कुछ इस्तेमाल किया हो तो लग गया हो, जो भी रही हो, जिस वजह से उनके कपड़े पर जाफरानी रंग लग गया था। तो अब आप ये सोचे कि इतनी छोटी सी बस्ती के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के शख्स, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी सहाबी और ऐसे सहाबी जिस सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों की जिम्मेदारी अपने सर पर ली थी, वो सहाबी रसूल जब शादी करता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है। और इसी तरीके से हजरत मुआज रदियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले शख्स थे, नौजवान आदमी थे। जब एक जंग से आ रहे थे, गालिबन सफर से वापस आ रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में थे। वो पूछते हैं कि ये बताओ तुम्हारी शादी हो गई है? उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी हाँ हो चुकी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि तुमने सय्यिबन और बिकरन यानी बेवा से करी है या कुंवारी लड़की से शादी करी है? उन्होंने फरमाया कि बेवा से करी है, क्योंकि पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फहल्ला बिकरुन कि तुमने कुंवारी लड़की से क्यों नहीं शादी करी, तुम्हारे साथ वो खेलती तुम उसके साथ खेलते। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के नबी मेरी बहनें हैं और मैं चाहता हूं कि मेरी बीवी उनकी कंघी करे। ये अल्फाज है हदीस के, उनकी कंघी करे। आज जो लड़कियां कहती हैं कि तुम्हारे माँ बाप की जिम्मेदारी मेरे सर पर नहीं या फलाना ये काम करना मेरे सर पर नहीं, हदीस कहां है दिखाओ। ये हदीस बताइए कंघी करे, ये अल्फाज है मेरी बहनों की कंघी करे, क्योंकि जो बेवा है उसे तजुर्बा होगा कैसे बच्चों को बड़ा किया जाता है। इस वजह से उन्होंने कहा था कि मैंने बेवा से शादी करी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले शख्स साहबी थे हजरत मुआज रदियल्लाहु अन्हु, उन्होंने शादी कर ली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं। अब हमारे मुआशरे के अंदर शादी को इतना पेचीदा बना दिया है कि कोई हालत नहीं, कि इसकी मिसाल क्या ही दी जाए। हम रिश्ता तय कर लेते हैं, साल भर के बाद तारीख रखते हैं कि इस दिन निकाह होगी, और बीच में नौशा साहब और दुल्हन साहब एक दूसरे से बात कर रही, जबकि खितबा जो है, पैगाम जो है, ये निकाह नहीं है, ये निकाह का अहद नहीं है। मंगनी कह ले, गरचे मंगनी की जो रस्म होती है वो करना हराम है। मंगनी कह ले, मंगनी के बाद जो बात करते हैं दुल्हा और दुल्हन, होने वाले दुल्हा और दुल्हन, ये चीज ऐन हराम है, बात करना जायज नहीं है। अब गलती हमारी ही वजह से हुई, क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, शादी तय कर ली और शादी की डेट कब रखी, एक साल के बाद की फला तारीख को शादी होगी। अब बुराई तो जन्म लेगी, हमने जगह दी तो बुराई तो आएगी ही। जगह किसने दी? आपने दी। अब बुराई तो घुसेगी, शैतान तो ताक में लगा ही हुआ है किस तरीके से बहका दे। अब आपको मैं बताऊं एक वाकया, हजरत सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह, ये ताबई के सरदार कहे जाते हैं, और अइम्मा सबआ यानी सहाबा कराम के बाद जो 7 इमाम थे मदीना के, उनमें सबसे आजम नाम था इनका सईद इब्न मुसय्यब। उस वक्त का बादशाह हाकिम अब्दुल मालिक बिन मरवान जो था, उन्होंने अपने बेटे का पैगाम दिया सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह की बेटी को, कि उनको पैगाम दिया कि मैं अपने बेटी यानी शहजादे की शादी मैं आपकी बेटी से करवाना चाहता हूं। तो उन्होंने मना कर दिया। अब वो जहां दर्स देते थे, जहां सिखाते थे, उनके एक तालिब इल्म थे अबुद्दाई या ऐसे करके उनका कुछ नाम था। तो वो कुछ दिन तक उस मुहादरे में हाजिर नहीं हुए, यानी जो उनके दर्सगाह लगती थी तो उसमें हाजिर नहीं हुए। अब जब कुछ दिनों के बाद वो आए तो उन्होंने कहा कि तुम कहाँ थे इतने दिन से, कहाँ गायब थे? उन्होंने कहा कि उस्ताद मोहतरम, मेरी बीवी का इंतकाल हो गया था जिसके गम में मैं मुब्तला हो गया था, इस वजह से मैं नहीं आ पाया। तो उन्होंने पूछा कि शादी करना चाहते हो? उन्होंने कहा हाँ, क्यों नहीं करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी है, क्या तुम उससे निकाह करोगे? क्या आपकी बेटी से मैं निकाह करूंगा? क्यों नहीं करूंगा? वो ताज्जुब में आ गया कि इतना बड़ा इल्म वाला शख्स
وہ اپنی بیٹی کا پیغام دے رہا ہے. اور یہاں پر ایک چیز اور واضح ہو جائے, ہمارے معاشرے کے اندر کیا رواج ہے کہ اگر لڑکی والا پیغام دے گا تو معیوب سمجھا جاتا ہے, یعنی اس کی لڑکی میں کچھ کمی ہے یا اس کے اندر کچھ کمی ہے کہ وہ لڑکی والا ہو کر پیغام کیسے دے رہا ہے. اور یہاں دیکھیے ڈائریکٹ لڑکے سے لڑکی کا بات کہہ رہا ہے, کیا تم میری بیٹی سے نکاح کرو گا. اور ایسا ویسا آدمی نہیں, اس وقت کا اعظم شخص علم کے لحاظ سے, جس کے علم کی وجہ سے, جس کی علم دینے کی وجہ سے آج ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی ہیں جو صحابہ کرام کے بعد ہمارے تک پہنچی ہیں. وہ شخص جس نے اپنی بیٹی کے لیے شہزادے کا رشتہ نکار دیا, اس نے کہا کیا تم میری بیٹی سے شادی کرو گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں کروں گا. فحمیدہ جو واقعہ ہے اس میں پھر بیان ہوا کہ اسی وقت خطبہ ہوا, نکاح پڑھا دیا گیا. اور بیچ میں انہوں نے کہا بھی تھا کہ میرے پاس صرف 4 درہم ہے, میرے پاس پیسے وغیرہ نہیں, صرف 4 درہم ہے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں. اب مہر کتنا طے ہوا اس کی تفصیل مجھے یاد نہیں, تو انہوں نے کہا میرے پاس 4 درہم ہے, کوئی بات نہیں. اب آپ سوچئے, جہاں ایک حاکم وقت کا بیٹا شہزادہ, اس کا پیغام, اور ادھر 4 درہم, جس کے پاس پیسے بھی نہیں, صرف 4 درہم ہے, اس کا نکاح وہیں طے ہوا, وہیں شادی ہو گئی, وہیں نکاح ہوا. گھر گئے خوش, بہت خوش, اور اپنی امی سے کہنے لگے کہ امی میرے استاد نے, سعید ابن مسیب نے, ائمہ 7 کہا جاتا ہے, 7 جو ائمہ تھے اس وقت کے مدینہ میں, ان میں ان کا نام ہے سب سے اوپر سعید ابن مسیب, انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کروا دیا. ماں بھی بہت خوش. اب آپ ہمارے معاشرے میں دیکھیں کہ وہ معاشرہ تھا کہ اپنے بچوں کو کس طریقے سے وہ ان کا حق دیتے تھے. یہ حق, ایک آدمی کے پاس یہ حق ہے, وہ جہاں چاہے شادی کر سکتا ہے, لیکن اس کے ساتھ مشورہ کر لے تو بہتر ہے, کیونکہ عربی میں ایک کہاوت ہے, ما خاب من استشار ولا ندم ما خاب من استخار ولا ندم من استشار, کہ کوئی بھی شخص تکلیف محسوس نہیں کرے گا جو استخارہ کرے گا, اور کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا جو مشورہ کرے گا. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ, قرآن کے بھی الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی صفات بتاتے ہوئے فرمایا کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ آپس میں مشورے بھی کرتے ہیں. تو اب ایسا بھی نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے شادی کر لیا جائے, ایسا بھی نہیں ہے. لیکن اس وقت کا حال دیکھیے کہ بیٹے نے شادی کر لی اور ماں کو آ کر بتا رہا ہے, اور کوئی وہ نہیں کہ تم نے بتایا کیوں نہیں, بنا بتایا کیسے کر لیا. وہ بھی خوش ہو گئی کہ اس وقت کا اتنا بڑا امام اپنی بیٹی کو دے رہا ہے, اور ایسے شخص کو جس کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے. تو وہ بہت خوش ہو گئے, اور انہوں نے کہا کہ ولیمے کی تیاری کرو. اور وہ تیاری کر رہے تھے, اس وقت وہ روزے سے تھے, اور افطاری کے بعد, افطار کرنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ دروازے پر کوئی شخص آیا ہے. وہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سعید ابن مسیب ان کی اپنی بیٹی کو لے کر دروازے پر آ گئے اور کہتے ہیں یہ لو تمہاری بیوی. اتنا آسان تھا نکاح کرنا. آج ہمارے معاشرے کے اندر اتنی برائیاں ہیں, اتنی برائیاں ہیں کہ اگر میں تفصیل سے بیان کرنا چاہوں تو وقت غالباً 2-4 گھنٹے چلے جائیں گے, اتنی. اور اس میں سے 90%, میں بہت احتیاط کر کر بتا رہا ہوں, 90% غیر مسلموں کا رواج ہے, غیر مسلموں کا چال چلن ہے. 90%, اور میں بہت احتیاط رکھ کے کہہ رہا ہوں, بعض جگہ تو ایسا ہے 100 میں 100% غیر مسلم جو کرتے ہیں وہ ہمارے یہاں ہو رہا ہے. اور اسی طریقے سے میں بعض جگہ کہتا بھی ہوں کہ کہیں کہیں لڑکے کو لڑکی دکھا دی جاتی ہے, لیکن لڑکی پر ہمارے معاشرہ, یہ مسلم سماج کی بات کر رہا ہوں, مسلم سماج کیا کرتا ہے, لڑکی کو لڑکا نہیں دکھاتا, جبکہ غیر مسلموں میں ہے. اور ہمارا دین اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ لڑکی لڑکے کو دیکھ سکتی ہے, اس کی تحقیق کروا سکتی ہے, اور جو چیز پوچھے کہ مجھے ایسی ایسی چیزیں چاہیے لڑکے کے اندر, اور لڑکا ایسا ہونا چاہیے, اس کے پاس پورا کا پورا حق ہے. آج ماں باپ کیا کرتے ہیں کہ ان کو لڑکا پسند آ گیا, دیکھا اس کے پاس بہت پیسہ ہے, بس نکاح کر دیا. لڑکی دیندار ہے, وہ چاہتی ہے کہ کچھ اس کے لیے بھی کوئی دیندار شخص ملے, لیکن کیا باپ کی مجبوری کی وجہ سے کر لیا. اور ایک واقعہ ہے کہ ایک نوجوان لڑکی, سنن نسائی کی روایت ہے غالباً, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتی, نوجوان فتاتن, یہ الفاظ ہے حدیث کے, کہ نوجوان لڑکی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے باپ نے زبردستی میرا نکاح اپنے بھائی کے بیٹے سے کر دیا ہے, اور مجھے وہ لڑکا پسند نہیں تھا, میں وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ بیٹھو یہاں پر, ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے, پھر ان سے یہ بتانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, پورا واقعہ بیان کیا. انہوں نے کہا کہ تم چاہو تو یہ نکاح توڑ سکتی ہو, فسخ کر سکتی ہو, توڑ سکتی ہو, تمہارے پاس اجازت ہے. وہ کہتی ہے کوئی بات نہیں اللہ کے نبی, میں
जो मेरे बाप ने मेरे लिए मुकर्रर कर दिया मैं उस पर अमल करती रहूंगी, कोई बात नहीं, अब मैं निकाह नहीं तोड़ूंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो शिकायत लेकर क्यों आई हो? एक रिवायत में ये अल्फाज हैं कि मैं जानना चाहती थी कि शादी में हमारे पास भी, हम लड़कियों के पास भी कोई हक है या नहीं है। दूसरी रिवायत में है कि मैं ये चाहती हूं कि मैं ये इल्म अपने बाद की औरतों को दे सकूं कि बाप के पास इतनी जबरदस्ती का कोई हक नहीं है, बल्कि लड़की के पास पूरी की पूरी ताकत है कि जहां वो शादी करना चाहे, जिससे वो शादी करना चाहे कर सकती है, लेकिन वली की इजाजत के साथ। और अगर वली को उसने इजाजत दे दी है, वली उसका बाप हो सकता है, भाई हो सकता है, कई लोग वली हो सकते हैं, बहरहाल दर्जात के मुताबिक होता है, तो इन तफसीलात में ना जाकर, तो वली को अगर उसने कहा है या वली देख ले कि शादी की उम्र हो गई है और लड़की की शादी करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या है कि ला तुनकिहुल अय्मा हत्ता तुस्तअमर, कि बेवा की शादी तब तक ना कराई जाए जब तक कि वो हुक्म ना दे दे, और वला तनकिहुल बिक्रा हत्ता तस्तअज़िन, के कुंवारी की लड़की तब तक नहीं करी जा सकती जब तक कि उसकी इजाजत न ली जाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि अल्लाह के नबी वो कैसे जवाब देंगी, उनकी इजाजत क्या है? कि उन्होंने फरमाया कि इजाजत वही है कि जब तुम उससे पूछो तो वो चुप रहे, अगर वो चुप रहती है तो उसकी हाँ है, अगर वो ना कह देती है तो ना है। और अब तुम्हारे पास कोई हक नहीं कि उस पर जोर डाले, प्रेशर डाले कि इसी दिन के लिए तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया था कि तुम चाहो जो बाप की बात नकार दो, ये वो वगैरह करके उस पर ब्लैकमेल करना या इमोशनल ब्लैकमेल, ये तरह तरह के प्रेशर बनाकर उसे मजबूर करना, ये किसी बाप के पास हक नहीं है, किसी भाई के पास ये हक नहीं है। और अगर ऐसा कर रहा है तो याद रखे वो बाप अपनी बेटी पर जुल्म कर रहा है या अपने बेटे पर जुल्म कर रहा है, जबरदस्ती के तौर पर। होता है ना कि कभी भाई भाई में मुआहदा हो जाता है, बहन भाई में, बहन बहन में मुआहदा हो जाता है, दोस्त दोस्त में मुआहदा हो जाता है कि मैं तुम्हारी बेटी की शादी अपने बेटे से कराऊंगा या मेरी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से कराऊंगा, ये मुआहदा हो जाता है पहले ही, जबकि जिसको शादी करनी है वो राजी नहीं है उससे, लेकिन फिर भी सिर्फ हमारे लिए वो कर लेता है कि हम उतना प्रेशर उस पर बना देते हैं, इस वजह से कर देता है। हाँ कर, तो ये तमाम चीजें जो हैं, इस चीज को खत्म करना चाहिए। और जो सबसे जरूरी चीज है, निकाह को आसान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी जो बेटियां हैं वो बहुत इर्तिदाद की तरफ जा रही हैं, यहां तक कि हमारे बेटे भी बहुत जिना की तरफ जा रहे हैं। जिना आम हो चुका है हमारे माशरे के अंदर, बहुत आम हो चुका है, जितना हम सोचते हैं उससे ज्यादा आम हो चुका है। तो इन तमाम चीजों से हमें अपने माशरे को अगर पाक करना है, अपने घर की बेटियों को, अपने घर के बेटों को पाक और साफ रखना है, तो निकाह को आसान करना चाहिए। अभी मेरे एक दोस्त की शादी हुई है, मेरे दोस्त के चचाजाद भाई की शादी हुई है, और आप जाने उनकी उम्र क्या है? 37 साल। 37 साल की उम्र में शादी हो रही है, और जो जवानी का मरहला था, आप सोचें कि क्या क्या कैसे उसने जवानी काटी होगी। कोई इंसान तहज्जुद पढ़कर तो अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर लेगा ना, ये फितरी जरूरत है, सब कोई जानते हैं। लेकिन हमने क्या कर लिया, पहले कमा ले, बंगला बना ले, ये कर ले, वो कर ले, तब जाकर निकाह होगा। निकाह इतना आसान था सलफ़े सालिहीन के दौर में कि एक माँ को पता नहीं कि मेरा बेटा निकाह कर कर चला आया, एक नबी को पता नहीं कि मेरे इस छोटे से शहर के अंदर एक सहाबी का निकाह हो गया, उन्हें पता नहीं, उन्हें बुलाया नहीं। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ना ओली वलो भी शादी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा था कि मुझे भी दावत दो, तुम वलीमा कर लो, ये हुक्म दिया था, ये नहीं कहा था कि मुझे भी दावत दो। या जब हजरत मुआज से पूछा कि तुमने शादी कर ली है, मुझे दावत क्यों नहीं दी, मुझे बताया क्यों नहीं, कहीं नहीं कहा। इतना आम था, इतनी जरूरत की चीज थी कि निकाह हो जाता था और बताने की जरूरत भी महसूस नहीं होती थी। तो सामाईन कराम, ये जो निकाह के मसाइल हैं, इसकी वजह से जो चीजें, जो फहाशी हमारे मुआशरे के अंदर आम होती चली जा रही है, इसे रोकने की जरूरत है। ये हमें समझ कब आएगा? कि जब हमारी बेटियां ऐसी हो जाएंगी या हमारे बेटे ऐसे हो जाएंगे, तब हमें समझ में आएगा। हमारी बेटियां खुल्लम खुल्ला जिना करने लगे, हमारे बेटे खुल्लम खुल्ला जिना करने लगे, तब हमें ये बातें समझ में आएंगी क्या? ये चीजें खत्म करने की जरूरत है। और जो शादियों में हमारे जो रसूम और रिवाज हैं, वो जब हमें पता है कि तमाम की तमाम चीजें गैर मुस्लिमाना रिवाज है, तब भी हम उसे खत्म नहीं करते। क्यों? अरमान है हमारे, जबकि हमारे ही निकाह में कहा जाता है निकाह मिन सुन्नती। उन अरमानों के तले उस निकाह मिन सुन्नती को पैरों तले कुचल रहे हैं,
तब हमारे कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। और अब कोई गैर मुस्लिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ भी कह दे, तब हमारा जोश वलवला एकदम सर पर चढ़ जाता, गुस्सा सर पर चढ़ जाता है कि कैसे कह दिया, कैसे कह दिया। शुरुआत तो तुम्ही ने करी है। जब शुरुआत तुमने करी है, अब कोई भी करे तो तुम्हें उससे क्या लेना देना। अब हम आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे लगा रहे, बोर्ड लेकर निकल रहे हैं। तुमने ही उस नबी को ऐसा बना दिया है कि लोग कहकर कुछ भी चले जा रहे हैं। जिस नबी के अखलाक ऐसे थे कि उनके अखलाक देखकर लोग ईमान ले आते थे, इस्लाम की तरफ चले आते थे, उस नबी को तुमने उस पर कीचड़ उछालना और तमाम चीजें बुरा भला कहना तुमने आसान कर दिया उनके लिए। क्यों? जब तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं तो तुम्हारे नमूने को जिसको अल्लाह ताला ने नमूना कहा, बेहतरीन नमूना कहा, तो उस नमूने के ऊपर कीचड़ तो उछलेगा ही। क्योंकि जब तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं और लोग समझ रहे हैं कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वैसे होंगे, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। जब हम ऐसे काम अंजाम देंगे तो लोग ऐसे ही तो कहेंगे। सामईन कराम, ये तमाम चीजें खत्म करने की जरूरत है। कितना वक्त है सामईन कराम? ये मैंने सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर की चीजें बोली हैं। अब कभी मजीद वक्त मिला तो और इसकी और तफसीलात भी करूंगा, या अगर कभी और मौका मिला तो मियाँ बीवी के जो हुकूक हैं उन चीजों पर भी बात हो सकती है। बहरहाल मेरी उम्र ऐसी नहीं थी कि मैं आप लोगों को इन चीजों पर कहूं। आप में से माशाल्लाह मुझसे कई ज्यादा उम्र वाले हैं, कुछ मेरे दादा की उम्र के हैं, कुछ मेरे वालिद चचा की उम्र के हैं, कुछ मेरे बड़े भाई के उम्र के हैं। तो मेरी ये हैसियत नहीं थी, या मेरी ये उम्र नहीं थी कि मैं आप सबको ये बतलाऊं। लेकिन अल्लाह ताला ने जो कुछ भी थोड़ा बहुत मुझे इल्म दिया है, इस बिना पर मैं इल्म हासिल करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं। और मैं देख रहा हूं कि जब हमारे माशरे के अंदर इतनी बेटियां अभी तक गैर शादीशुदा हैं, वजह क्या है? हमारे पास जहेज देने के पैसे नहीं। और मैं जहेज के बारे में बताऊं कि जो जहेज है ये सरासर हिंदुआना रस्म है। हिंदुओं में जहेज क्यों दिया जाता है? जहेज इसलिए दिया जाता है क्योंकि वहां उनके यहाँ बेटियों की कोई हैसियत नहीं है। वहां बेटियों को बोझ समझा जाता है कि बस बोझ टल जाए। और जो क्या कहते हैं, दुल्हा है, वो हमारे लिए समझिए एक अवतार है। एक दुल्हा हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है, इस वजह से उसे जहेज दिया जाता है। आज हमारे मुआशरे के अंदर लोग जहेज की डिमांड करते हैं। कुछ लोग खुल्लम खुल्ला कहते हैं, कुछ लोग कनखियों और इशारों में कहते हैं। और मैं कहूं, जो लोग भी जहेज की डिमांड करते हैं वो नामर्द हैं। क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर कहता है, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, आदमी मर्द पर हाकिम है, आदमी औरतों के जिम्मेदार हैं, आदमी के ऊपर औरत के खर्च का जिम्मा है, आदमी औरतों की जरूरत को पूरा करेगा। लेकिन जब हम ही डिमांड करने लगते हैं, आदमी के ऊपर मेहर देने का है। अल्लाह ताला कुरान में कहता है ना, वातुन निसा सदुकातिहिन्न निहला, कि औरतों को उनका मेहर खुशी खुशी दे दो। उन तमाम जगहों पर यही है कि आदमी खर्च उठाएगा। हदीस में भी क्या अल्फाज हैं? मन इस्तता मिनकुमुल बात, जो शादी के खर्च उठा सकता है, बीवी के कपड़े और बीवी को खाना खिलाना, कपड़े वगैरह दे सकता है, उसे चाहिए कि वो शादी कर ले। खर्च किस पर है? मर्द पर है। अब जो शख्स भी औरत से खर्चा करवाता है, औरत से जहेज तलब करता है, औरत के घर वालों से कहता है कि मेरे इतने बाराती आएंगे, इनका जिम्मेदार तुम्हें उठाना है, वो नामर्द है। अपने रब की दी हुई मर्दानगी पर वो नकार रहा है, अपने रब की दी हुई मर्दानगी को हटा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, उसका रब कह रहा है कुरान मजीद के अंदर, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द औरतों पर हाकिम है, मर्द औरतों की जिम्मेदार, औरत मर्दों की जिम्मेदार नहीं है। अब अगर आप अपनी जिम्मेदारी औरत पर डाल लें तो आप क्या हुए? नामर्द ही तो हुए। तो सामईन कराम, जहेज को लेना खत्म करिए। और ये खत्म कौन करेगा? ये गरीब लोग खत्म नहीं कर पाएंगे। गरीब लोगों के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो इन चीजों को खत्म कर सके, बल्कि वो लोग जिन्हें अल्लाह ताला ने माल से नवाजा है, वो पहल करे, वो सख्ती करे कि हमारे घर पर, हमारे लड़के के यहां एक टूटी हुई प्लेट भी जहेज के नाम पर नहीं आएगी। अब आप कहें, अरे हदिया देना चाह रहे हैं या ये देना चाह रहे, दे सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वजह यही है कि अगर कोई शख्स हदिया देना चाह रहा है,
اس کے دل کے اندر 80% یہی ہوگا کہ معاشرے کو دکھانا ہے، یا ہو سکتا ہے وہ لینا چاہ رہے ہوں، یہ ٹھیک طریقے سے منع نہیں کر رہے ہیں، اس وجہ سے یہ بھی لینا چاہ رہے ہیں، یا میری آگے کی بیٹیاں باقی ہیں، آگے رشتے نہیں آئیں گے، اس وجہ سے کوئی نہ کوئی پریشر ہے اور غیر شرعی پریشر ہے، اس وجہ سے وہ ہدیے کے نام پر دے رہا ہے۔ تو اہل مال کو، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال دولت سے نوازا ہے، انہیں ہی پہل کرنا پڑے گا، انہیں ہی سختی کرنی پڑے گی، انہیں ہی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم مال کو بے دریغ خرچ کریں گے، شیطان کے بھائی بن کر مال اڑائیں گے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا کہ بے فضول اور فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے بھائی بن کر ہم شادیاں کریں گے، تو اب جو غریب آدمی ہے اس کے دل کے اندر بھی تو بیٹی کی محبت ہے، اس کے دل کے اندر بھی تو بیٹے کی محبت ہے، وہ بھی تو چاہے گا کہ میں بھی اپنی بیٹی کے لیے اچھے سے اچھا کر سکوں۔ تو اس کے اوپر تو ایسے ہی پریشر آ گیا کہ مجھے بھی اپنی بیٹی سے محبت ہے، مجھے بھی اب کرنا پڑے گا، وہ لے گا، ادھار لے گا، لون لے گا، قرض میں مبتلا ہوگا، سود کی تباہ کاریاں اس پر آ جائیں گی۔ تو پہل کس کو کرنی پڑے گی؟ مالداروں کو کرنی پڑے گی۔ شادیوں کو آسان کرنے کی ذمہ داری سب سے پہلے مال و دولت رکھنے والوں پر ہے، خرید تو بعد میں کر لے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ دو چیزیں میں بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ جب کبھی بھی آپ اگر لڑکی والے ہیں، آپ کے پاس کوئی ایسا رشتہ آئے، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ لڑکی والوں کا صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کہا کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آ جائے جس کے دین سے، جس کے اخلاق سے تم راضی ہو، تمہیں پسند ہو، یہ صحیح میں دیندار ہے، اچھے اخلاق والا ہے، دکھاوٹی دین والا نہیں ہے، سچ میں دیندار ہے، سچ میں اللہ کا تقوی ہے اس کے اندر، صحیح معنوں میں وہ اچھے اخلاق والا ہے، اس کا رشتہ تمہارے پاس آ جائے تمہاری بیٹی کے لیے، فزوجوہ، تو شادی کر دو، الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تم سوچو گے کہ دین تو ہے، اخلاق تو ہے، چھوڑو جانے دو، لیکن پیسہ نہیں ہے اس کے پاس، کیسے کرتے اپنی بیٹی کی شادی، تو تم نے نکار دیا، شادی نہیں کیا، تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، ایسا کرو گے کہ دین اور دیندار اور اچھے اخلاق والے لڑکے کا رشتہ نکار دو گے، ریجیکٹ کر دو گے، زمین میں فساد پھیلے گا، زمین میں فتنہ پھیلے گا، اور فساد ایسے پھیلے گا عریض، عرض میں، چوڑائی میں پھیلے گا فساد۔ اور آج یہی فساد ہمارے سامنے ہے، ہمیں پتا ہے اس کی وجہ سے کیا کیا خرابیاں آ رہی ہیں، ہمیں معلوم ہے جہیز دینا غلط ہے، ہمیں معلوم ہے بارات لے جانا سنت نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے جو بے دریغ خرچ کرنا گناہ ہے، لیکن پھر یار ارمان ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے۔ اگر اس معافی مانگنے سے پہلے آپ کی موت آ گئی تب آپ کیا کریں گے؟ تو سب سے پہلے اس مجلس سے جتنے بھی لوگ ہیں یہاں سے اٹھ کر جائیں، یہ عہد کر لیں کہ اب ہم اپنے بیٹے کی، اپنے بچوں کی، یا اپنے بھائیوں کی میں سے کسی کی بھی شادی کریں گے تو سنت پر من وعن عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور ویسے ہی کریں گے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ۔ کسی کی آواز نہیں آ رہی؟ کرنا نہیں چاہ رہے کیا ایسے سنت پر عمل کر کے؟ انشاءاللہ۔ اور سنت پر عمل کرنے کا ایک فائدہ میں بتا دوں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جس نے اللہ کی اطاعت کری، اس کے رسول کی اطاعت کری، وہ جیت گیا۔ اور کیسی جیت جیتا؟ عظیم جیت جیتا، سب سے بڑی جیت جیتا ہے، کامیاب ہوا، ایسی کامیابی ملی جو سب سے بڑی کامیابی تھی۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اللہ کے رسول کی سنت کو پیٹ پیچھے ڈال کر جائے گا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ، وہ گمراہ ہو گیا، تباہ ہو گیا، بے عزت ہو گیا، ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور ایسی گمراہی میں چلا گیا، بہت دور کی گمراہی میں، بہت بڑی گمراہی میں چلا گیا۔ تو ہمیں اگر جیتنا ہے، جیت حاصل کرنی ہے، کامیابی حاصل کرنی ہے، تو ہمیں کرنا کیا پڑے گا؟ اللہ اور اس کے رسول کی بتائی گئی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، وقت نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کر سکوں۔ موٹے موٹے طور پر یہی ہے کہ جتنی بھی ہمارے معاشرے کے اندر نکاح کے سلسلے میں برائیاں ہیں، رسوم و رواج ہیں، انہیں ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اسے ختم کریں گے تبھی ہمارے معاشرے سے زنا ہٹ جائے گا، بے حیائی ہٹ جائے گی، برہنگی ہٹ جائے گی، فحاشی ختم ہو جائے گی، ہمارا معاشرہ مثالی بن جائے گا۔
अगर यहाँ पर 20-25 लोग जो भी हैं, अगर आप लोग भी अहद कर ले तो आपके जरिए से 20-25 घर पहले सुधर जाएंगे, उसके बाद आप और शादियां करेंगे। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते आपको देखकर लोग हो सकता है इस्लाम की तरफ चले आएंगे, उनमें भी सुधार आएगा, ये फहाशी बिल्कुल खत्म हो सकती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन इन तमाम बातों को सही मानों में समझने की तौफीक अता फरमाए। या रब्बल आलमीन हमसे जो पहले जाने अनजाने में जो गुनाह हो गए हैं उन्हें माफ फरमा दे। या रब्बल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को इसी तरीके से जन्नतुल फिरदौस में जमा फरमा दे। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।